मेरी जिंदगी संभाले मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के हरा तेरी यारी को मैंने तो खुदा याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना
parents give them a huge round of applause. Truly appreciable. Annual Day celebration is not just celebrating a day, but celebrating a journey. Report reading is the mirror of the school's progress. It is so informative that it tells what was done and what was explored in the school. It is a formal document that elaborates about the various school activities in the field of academic, sports, cultural activities, success and achievement. Now I would like to call Sunidhi Didi, Shalini Didi, Kanish Bhaiya, Manav Bhaiya to present annual report of school 2023. Perfection is not attainable, but if we chase perfection, we catch excellence. A very warm good evening to each one of you gathered here. We are here to present the annual report of the academic session 2023-24. With this great thought, we commenced our academic session 2023-24 on 20th March 2023. The first day of the academic session has great significance, as this is the first step towards realization of our goals set for the entire year. The day began with a prayer service, beginning with a ceremonial lamp lighting, seeking God's blessings upon our school and all of us. On 27th March, our ex-student Vedraj was felicitated by the Chief Minister of our state, Mr. Hemant Soren in Ranchi, for his historical achievement of becoming the second national topper in ICSE Board Exams 2022. He was given a monetary reward of Rs 3 lakhs, a laptop and a smartphone. On 20th April, we celebrated Eid with great enthusiasm and joy. To mark the occasion, a special prayer was conducted during the assembly, followed by a colorful program. On 14th May, our school played the cricket final match with Indira Gandhi Shiksha Niketan at Birsa Munda Cricket Stadium, where we were declared the runner-up. Our team was awarded with a beautiful trophy. The basketball team of our school got selected for the CISCE regional tournament held at Bokaro on 22nd September, and 3 of them got selected, namely Aman Topno, Brajmohan Gagrai and Rahul Tiria for the national tournament held on 27th October at Tuticorin, Tamil Nadu, and their performance was excellent. The ICSE and ISC board results were declared on 14th May. Our students made us proud by their excellent results in both ICSE and ISC board exams. In ICSE, Palak Kashyap became the school topper, scoring 97.6%. In ISC science stream, Christina Tamsoy became the school topper, scoring 93.5%. In ISC commerce stream, Shubham Jha became the school topper, scoring 86.5%. The toppers, along with their parents, were felicitated on 23rd of June. Our esteemed chief guest for the occasion was Shri Ajay Linda, Deputy Inspector General of Police, Kulhan Range. The SHO of Sadar Thana, Shri Praveen Kumar, also had graced the occasion. On 10th June, our teachers had an orientation program with the theme Happy Teachers Make Happy Classrooms. The resource person was Mrs. Arjita Singh from Patna, a certified professional trainer of chalks. It was really an enriching moment. Our teachers had a great learning experience. We had investiture ceremony of our new school cabinet on 28th of June. It was a proud moment for all of us. The outgoing members handed over their responsibilities to their successors. The newly elected members of the school council then took their oath of office. Shri Nirmal Tripathi, principal of Marwadi Himindi Middle High School, Chaibasa, had graced the occasion as chief guest. Our principal, Srisha Jyotsna, congratulated the team and reminded them that with position comes responsibilities towards themselves, their school and peers. On 1st July, we had the Freshers' Day to welcome the students of class 11. We had a prayer service
followed by a colorful entertainment. On 21st July, we celebrated the Foundation Day of our school. This day is the time to remember those that have helped to shape who we are today. We began the day with a prayer service followed by a short program, remembering all the pioneers who have contributed immensely for the growth of this institution. We specially remembered and prayed for Reverend Father Cyril Fernandez, the founder and the first principal of this institution. On 2nd of August, our school organized Road Safety Awareness Program. Shri Ashutosh Kumar, Awareness Program in charge, spoke to the students and discussed many traffic rules and regulations, and also explained to them how they can read and understand the signs and symbols used in traffic. It was indeed really an informative session. UMI Provincial Reverend Sister Nikesh Thomas from Sacred Heart Province, Bangalore, visited our school on 8th August. We had organized a special program to honor her presence. She appreciated the hard work of students, teaching and non-teaching staff, and the management of school, and encouraged us to continue doing the good work. On 15th of August, we celebrated our 76th Independence Day. Patriotic fervor was in the air. Our chief guest was Shri Kuldeep Kumar, second in command, 174th CRPF Battalion. The day was celebrated with the spirit of patriotism and pomp. After the flag hosting and national anthem, we had a cultural program. The chief guest addressed the gathering and motivated the students to be good citizens. Our school aims for the holistic development of our students. So, we provide opportunities to students where they can showcase their skills and talent in sports and various other forms of creative activities. Every month, we conduct various competitions for each class. Our students are doing extremely well in these activities. These are the opportunities which give them a chance to discover their hidden talents. Once these talents are discovered, they are given ample opportunities to hone their skills. Our school students are extremely good in co-curricular activities. On 16th July, the West Singhbhum District Olympic Association had organized a karate championship in which Atharv Bhagat of class 6C won gold medals in both kata and kumite. On the same day, an inter-school chess championship was organized at SR Rumta Recreation Hall, Town Club, Chaibasa. Master Tanish Kumar of class 9 was ranked first. He won a trophy and a certificate. He also bagged the first prize and was declared the man of the match in the inter-school chess championship organized at the same place on 2nd October. The 4th Jharkhand State Yoga Sports Championship was organized by East Simham District Yogasana Sports Association on 7th and 8th October at Srinath University, Jamshedpur. Ayusha Kumari of class 10A secured 2nd position in artistic pair 14 to 16 girls category. On 4th September, our school celebrated the feast of our Blessed Brigida Morello, patron of our UMI sisters. We had a prayer service followed by a cultural program. Our students enacted a skit based upon the life of Blessed Brigida Morello, which made the day a memorable one. On 5th September, we celebrated the Teachers' Day. Students welcomed the teachers with handmade cards, sprinkled flowers, and applied tika on their foreheads and ushered them to their seat. They presented numerous colorful programs to honor and pay respect towards their gurus. Our school organized Cruise Veer Rally from 30th of September to 2nd October. Total 21 Catholic schools took part in the event and around 780 students and 55 animators were present. Most of the students belong to village areas and they had a great time here. They really made use of these moments and had an enriching experience. We had Diwali celebration on 12th November.
students presented a beautiful cultural program and they expressed their thoughts on the significance of Diwali celebration. They gave a beautiful message of peace and joy. On 15th November, we celebrated Jharkhand Day to commemorate the formation of Jharkhand State on November 15, 2000. We also celebrated Children's Day on the same day. With great joy and excitement, the students dispersed. This academic session has been quite eventful, and we are really proud by the harvest of this year. We thank the Almighty God for watching over us, and we pray to Him to bless all our efforts in the future and lead us to reach new heights. Thank you. Thank you. Life without liberty is like a body without spirit. To be patriotic is to love and respect your country. Freedom and democracy are dreams you never give up. Freedom is the oxygen of the soul. अनेकता में एकता ही हमारी शान है, इसलिए भारत देश महान है. दे सलाम इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है. सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है. To make this evening more exciting, let's have the student of grade 2 with a big hand of applause.
उठा के झंडा लहराएगा, अब तिरंगा सजाने तुझको आ रहा हूँ माँ। तू धड़कन दिल और जान हमारा, आन बान और शान हमारा, वतन की मिट्टी ने दी है आवाज। तो छोरी हो या छोरा, बच्चा हो ढिंढोरा, उठाओ सब ये नारा जय हो। तो बोलो बोलो झट से निराला, सबसे है आला, रब का दिया है तू। गंगा की धारा रग में हमारा, भोले है आज लहू। ये भारत माता की जय जय हो, ये भारत माता की जय जय हो, और भारत माता की जय जय हो, और भारत माता की जय जय हो, ये भारत माता की जय जय हो, ये भारत माता की जय जय हो, और भारत माता की जय जय हो, और भारत माता की जय जय हो। सच ही तो है, सदा ऊंचा रहे तिरंगा हमारा, हमारी माटी, हमारा भारत। Wow, recommendable, a truly heart-touching act. Thank you, dear friends. It really filled our heart with unity and patriotism. भाई, भाई, big B, bro, brother, भाई सुनो तो सही। हाँ जी, बोलिए ना। प्यार क्या है? तुम हर रोज मेरे बैग से चॉकलेट खा जाती हो, फिर भी मैं वही रखता हूँ। यही प्यार है। भाई बहनों की शान होते हैं और बहनें भाइयों की जान होती है। Brothers and sisters are as close as hands and feet. There can be no better companion than a brother, and there can be no better friend than a sister. To make this magical evening more magical, our next performers from grade 1 are here with us to show the bond between the siblings. So let's have them from the bottom of our hearts a big round of applause.
सबका कहना है। एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। जब से मेरी आँखों से हो गई तू दूर, सबसे सारे जीवन के सपने हैं छूट। जब से मेरी आँखों से हो गई तू दूर, सबसे सारे जीवन के सपने हैं चूर। आँखों में नींद ना, मन में चैना है। एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। घोड़े जैसी चाल, हाथी जैसी तुम, ओ सावन राजा कहाँ से आए तुम। घोड़े जैसी चाल, हाथी जैसी तुम, ओ सावन राजा कहाँ से आए तुम। कोई लड़की है जब वो हंसती है, कोई लड़की है जब वो हंसती है। बारिश होती है छनक छनक छुम छुम। कोई लड़की है जब वो हंसती है, बारिश होती है छनक छनक छुम छुम। कोई लड़का है जब वो गाता है, अरे कोई लड़का है जब वो गाता है, सावन आता है घुमर घुमर घुम घुम। कोई लड़का है जब वो गाता है, सावन आता है घुमर घुमर घुम घुम। छक धुम धुम छक धुम धुम छक धुम धुम छक धुम धुम। दबी दबी सी हंसी होठों में फंसी है, गुदगुदी कर रही है। अल्लाह मचा रही है पागल सी ख्वाहिशें, खुशियों की मिली है वजह। कुछ है जुनून सा, कुछ पागलपन है, तो बातें करता ये बुद्धू सा मन है। कुछ है जुनून सा, कुछ पागलपन है, सौ बातें करता ये बुद्धू सा मन है।
friends, it was really mesmerizing. Such a brilliant performance. Give them a joyous clapping. Far and away, the best prize that life has to offer is the chance to work hard at work. Prize distribution is a memorable, proud, special, and most awaited event for every institution. For this, I would like to call Varsha ma'am. Over to you, ma'am. Thank you, Samarth. I would now call our Honorable Chief Guest, Shri Ajay Linda Sir, DIG Kulhan Range, Shri Gautam Rana Sir, Executive Engineer, DBC, escorted by our Principal, Sister Jyotsna, to kindly grace the stage. Everyone to kindly be seated. The key to success is to focus on goals, not obstacles. Good evening to all. I extend my hearty welcome to the General Proficiency Award ceremony of LKG to Standard 4 for the session 2022-23. It gives me an immense joy to host the ceremony that has been observed to commemorate the achievements of our students. It is a matter of great honor and delight to appreciate and reward the hard work as well as the performance of the students who have made us all proud. I request our Chief Guest, Shri Ajay Linda Sir, DIG Kulhan Range, and our respected Principal, Sister Jyotsna, to do the honor. Sir, please. Here I call upon the toppers from LKG who scored 100% marks. Samrita Maji, LKG A. Please give her a big round of applause, parents. Yuvraj Sundi, LKG A. Anushka Hissa, LKG B. Siddharth Raj Mahato, LKG B. Priyansh Prajapati, LKG C. Dhruvi Pan, LKG D. Please give them thunderous clapping. Moving ahead from UKG, Alina Ahsan scored 100% marks. Anvika Srishti from UKG A scored 100% marks. Thank you, sir. Please take your seat. Now I request
Shri Gautam Rana Sir, Executive Engineer DVC, to do the honor. Sir, please. From UKGB, Shadman Akhtar scored 100% marks. पेरेंट्स प्लीज तालियां बजाएं और इन बच्चों का हौसला बढ़ाएं। हर्षिका कुमारी UKGC scored 100% marks. Kapil Mahato UKGD scored 100% marks. Shrishti Sipora Sandil from UKGD scored 100% marks. Samya Lamay from 1A was overall topper with 98.58% marks. Ishika Paul was the class topper with 98% marks from class 2. Afifa Intikhab from class 3B was the overall topper with 95.53% marks. Adrija Banerjee from class 4D was overall topper with 98.8% marks. Parents, keep applauding our children. Thank you, sir. Thank you, sister. Kindly take your seats. कामयाबी की दास्तां को रोकना मत, कामयाबी की दास्तां को रोकना मत, सफलता की सीढ़ियों को छोड़ना मत। माना कि हर दिन बराबर नहीं होते, माना कि हर दिन बराबर नहीं होते, पर पीछे मुड़ जाना कोई रास्ता नहीं होता। Congratulations to all my dear students. Thank you everyone. To hear his insights and experiences, which will definitely enrich our lives. Sir, you are a carver of generosity and wisdom. So, to enlighten us with your remarkable words, I would like to invite our respected chief guest, Shri Ajay Linda Sir, DIG Konhans Range, to elevate us with your thought-provoking message. Sir, please. थैंक यू वेरी मच। आज के इस वार्षिक उत्सव पर विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित गौतम राणा जी, सिस्टर ज्योत्सना प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, फादर सिस्टर्स, विशिष्ट अतिथिगण, सभी प्राउड पेरेंट्स और सभी बच्चे, सर्वप्रथम आप सबों को हमारी ओर से गुड इवनिंग, नमस्कार और जोहार। ये एक ऐसा मोमेंट है जो हम बिल्कुल अपने बचपना को याद करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल I congratulate to all the students who performed superb with the stage. They deserve a big round of applause, please.
I appreciate your energy level. I appreciate your talent, your zeal and zest. I congratulate to Sister Jyotsna, Vice Principal, all the teachers and staff for this spectacular evening. So they also deserve for a big round of applause. I think we, being one of the parents here, हम भी और हमारे लिए भी एक जोरदार ताली बजाई। माहौल में हम लोग हैं, ये माहौल आज म्यूज़िकल माहौल है, गाने का कल्चरल माहौल है, हम सब बहुत उत्साहित हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, being one of the पेरेंट्स, मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग सभी यहाँ पर हैं, सब अपने बच्चों को देखना चाहते हैं। हम सब लोग की इच्छा है कि हमारे बच्चे अच्छे करें और अच्छे माहौल में पढ़ें, पले बढ़ें। और ये जो था, ये एक माहौल है, एक अच्छा माहौल है। कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट, कुछ सोशियोलॉजिस्ट और कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि बच्चों के विकास में या आम आदमी के विकास में दो फैक्टर्स काम करते हैं मुख्यतः। दे आर टू फैक्टर्स विच हैव ए ग्रेट रोल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग और चिल्ड्रन। दे आर, वो दो हैं, एक पहला है हेरिडिटी और दूसरा है माहौल। माहौल जो अभी हमने देखा, ये भी एक माहौल है जो बच्चे को ओवरऑल डेवलपमेंट कराता है, उसकी सराउंडिंग विकास कराता है, उसकी बहुमुखी विकास कराता है, उसको आगे लेके जाता है। कहते हैं साइंटिस्ट कि जो हेरिडिटी है, हेरिडिटी हम सभी जानते हैं, जो हमारे फोर फादर्स से हम लोग को मिलते हैं, क्रोमोजोम, जेनेटिकल फैक्टर। लेकिन ये फैक्टर फिक्स्ड, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, कोई पेरेंट्स को चेंज नहीं कर सकता। बच्चों को जो पेरेंट्स के माँ बाप के द्वारा जो मिलता है, नाक का शेप, आँख का कलर, बाल का कलर, बहुत बार हम लोग ऐसे बोलते हैं कि देखो वो तो माँ पे गया है, ये तो बाप पे गया है, जेनेटिकल। लेकिन हम लोग चेंज कर सकते हैं इन्वायरमेंट को, वातावरण को, माहौल को। हमने कहा एक माहौल था, ये माहौल था जो बच्चों को कॉन्फिडेंस देता है। दिस सॉर्ट ऑफ इन्वायरमेंट, it gives confidence, it gives attitude। ये एक बिलीफ सिस्टम बनाता है जिसमें बच्चे विश्वास करते हैं कि I can do anything। ये बच्चे में जो विश्वास आता है, वही बच्चा आगे चल पाता है। अब मैं बताऊं, being one of the parents, कि हम लोग जो माहौल है बच्चे का, ये कहे तो हम ही लोग को बनाना है बचपन से। अब ये पहला माहौल जो हम लोग बनाते हैं, उसको कहते हैं संस्कार का माहौल। संस्कार, गार्जियन ही बच्चों को संस्कार देते हैं। अगर हम बच्चे को अच्छे संस्कार देते हैं तो वो स्कूल में आके वो संस्कार और फलता फूलता है और फ्लरिश करता है, उसको और नर्चर करते हैं, वो जाके एक सफल इंसान बनता है। हम बच्चे को मेहनत करने का अगर संस्कार देते हैं, वो बच्चा मेहनत करता है और मेहनत करके वो और आगे जाता है। बच्चे को हम बताते हैं कि बड़ों को इज्जत करना चाहिए, वो बच्चों को इज्जत करता है और वही आगे जाके बच्चा एक संवेदनशील बच्चा बनता है, बड़ों को इज्जत करता है, अच्छा नाम कमाता है। तो ये सभी हम चाहेंगे तो बच्चों में हम दे सकते हैं। आज हम सब लोग को ये इच्छा है कि हमारे बच्चे अच्छे करें। तो मैंने कहा ना कि हम लोग जो फिक्स फैक्टर है, जेनेटिकल फैक्टर में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते, कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो एनवायरनमेंट है उसमें हम लोग चेंज कर सकते हैं। हमारे संस्कार, हमारे उसको आदत, हम उसको पढ़ने की आदत कराते हैं। मैं एक दूसरा फैक्टर मैं बताना चाहूँगा, संस्कार ही है ये, मेहनत करने का संस्कार। मेहनत का, मैं इससे भी पहले स्कूल में आया था, जो मैंने जो टॉपर्स थे उनको फेलिसिटेट किया था, तो मैंने उस समय बताया था कि
मेहनत का कोई विकल्प नहीं है एक सफल इंसान के लिए। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है सक्सेस के लिए। कोई भी महान पर्सनालिटीज या कोई भी बड़े लोग कोई मैटरनिटी वार्ड से नहीं आता। कोई मैटरनिटी वार्ड में कोई नर्स नहीं देती है कि लो महान आदमी मैं दे दिया, लेके जाओ महान। सभी लोग मेहनत करते हैं। मैं एग्जाम्पल बार बार देता हूं कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहते थे, बच्चों में अगर ड्रीम हो और बच्चों में मेहनत हो तो बच्चा कुछ भी अचीव कर सकता है। बच्चे में ड्रीम हो कुछ करने की और बच्चे में मेहनत करने की इच्छा हो, करता हो, तो कोई भी अचीवमेंट कर सकता है, कुछ भी अचीवमेंट करता। उसके कुछ हो सकते हैं, कुछ रूप हो सकते हैं। कुछ बच्चा क्यों आगे आ जाता है, कुछ बच्चा पीछे आ जाता है। हर एक बच्चा एक विशुद्ध साहित्य है। हम कहते हैं ना, हर एक बच्चा एक विशुद्ध साहित्य है, उसमें कुछ नहीं है। उसको आपको मोल्ड करना है, उसको आपको सेव करना है। सब बच्चे अच्छे होते हैं। कोई बच्चा आगे पीछे छोटा ये वो नहीं होता। हम उसको कैसे मोल्ड करते हैं उस पर डिपेंड करता है। हमने कहा ना, एक चीज बड़ी चीज है जो हम कैसे बच्चों को अनुशासन में रखते हैं। अनुशासन एक बहुत बड़ा माहौल है, इसको मैं कहूँगा। अनुशासन एक ऐसा माहौल है। अनुशासन जैसे हम सब जानते हैं, अनु अगर संधि विच्छेद करें तो अनु जोड़ शासन। अनु बने अनुसरण, शासन बने नियम, नियम का अनुसरण करना। अगर बच्चे नियमों के अनुसार चले तो बच्चे अच्छे करते हैं। नियमों के अनुसार चले मैंने उसका एक रूटीन हो। बच्चे पढ़े समय से, उठे समय से, स्कूल जाए समय से, खेले समय से। ऐसा नहीं कि बच्चा आज 6 बजे उठा, कल 8 बजे उठा, परसों दिन 10 बजे उठा, तो वो जो है अनुशासन नहीं रहा गया। अनुशासन को कहते हैं को विकास के लिए और सफलता के लिए एक सीढ़ी का काम करता है। इट्स लाइक ए लैडर टू द सक्सेस। तो हम लोग बच्चे को ये एक अच्छा संस्कार दें, अनुशासन में रखें। देखिए वो बच्चा आगे जाएगा। वो बच्चा को कोई नहीं रोक सकता जो अनुशासित बच्चा। बिल्कुल क्यों? इसलिए एक अनुशासित बच्चा होगा वो मानसिक रूप से स्ट्रांग होगा, he will be mentally strong. सेकेंडली वो हेल्दी भी होगा। वो बहुत जल्दी हड़बड़ाएगा नहीं, क्योंकि चीज़ों को वो रेगुलर कर रहा है, चीज़ों को टाइमली कर रहा है, तो उसमें बहुत हड़बड़ाहट नहीं आती है। एक दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि बच्चों को और एक चीज़ आती है, वो है नकारात्मक सोच। बहुत सारे बच्चे बहुत छोटे में ही नकारात्मक सोच ले लेते हैं। ये हमने संस्कार दिया। नकारात्मक संस्कार क्या? सुबह उठे, हमने बच्चों को कहा बेटा जाके दूध ले आओ। एक बच्चा खट से उठेगा, पापा। साइकिल लिया, साइकिल लेके गया, दूध लेके आ गया। दूसरा बच्चा, पापा जानते हैं इधर दर्द हो रहा है, पापा अभी तो 6 ही बजा है, क्यों उठा रहे हो, पापा अभी तो ये है वो है। 2 तरह के बच्चे। एक सकारात्मक बच्चा है, सोचता है कि पापा ने ऑर्डर दे दिया, ये मेरा ड्यूटी है, मैं उठूँ जाऊँ ला के दूध ले आऊँ। एक बच्चा कहता है कुछ न कुछ बहाना कर लेता हूँ, सीखा होगा कहीं से, उसने कह रहा कि छोड़ो ना, मैं क्यों जाऊँ, पापा ही जाके ले आए। तो एक सोच, ये जो सकारात्मक और नकारात्मक सोच है, ये भी बहुत। जो बच्चा सकारात्मक सोच के साथ रहेगा उसमें एनर्जी होगा, वही बच्चा सक्सेस होते हैं, वही बच्चा आगे जाते हैं जिसमें एनर्जी होता है, जिसमें जिल होता है, जिसमें जस्ट होता है, जिसमें जोश होता है, जज्बा होता है, आगे जाने की हिम्मत होती है। वो हम देते, हम उसमें भरते। अब जो नकारात्मक बच्चा सोचेगा उसमें क्या होगा? डिसअपॉइंटमेंट, ऑलवेज वो क्रोध रहेगा, उसमें थोड़ा सा नाराज सा हमेशा रहेगा। तो उसमें क्या होगा ना, उसकी जो एनर्जी लेवल है वो हमेशा कम रहेगा। कोई भी काम उस एनर्जी से नहीं कर पाएगा जिस एनर्जी से उसको करना चाहिए। तो हमको लगता है कि ये भी हम लोग को देखना चाहिए। मैं बार बार बोलता हूँ, बहुत सारे हायर स्कूल्स के बच्चों के पास जाता हूँ, कॉलेजेस में जाता हूँ, तो एक चीज़ मैं बार बार बोलता हूँ, दैट इज़ हमारा ये है कि आवर लाइफ इज़ अ सेगमेंट बिटवीन B and T। B फॉर बर्थ एंड T फॉर डेथ। हमारा लाइफ इज़ अ सेगमेंट, एक सेगमेंट है, 2 पॉइंट है, बर्थ एंड डेथ, इसी के बीच का है। भागवत गीता कहता है कि जो जन्म लिया है वो मरेगा और उसका पुनर्जन्म भी होगा। हम उसी के कंटेक्स्ट में करें, जो बी है वो डेथ आएगा ही, जिसने जन्म लिया वो मरेगा।
लेकिन इस 2 पॉइंट के बीच में एक और भी लेटर है सी, दैट इज चॉइस। अब हम बच्चे को चॉइस दें या बच्चा चॉइस ले कि बर्थ और डेथ के बीच में हमको क्या करना है। हमको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, यूपीएससी क्रैक करना है, सिविल सर्विसेज करना है, नहीं करना है, और रोते रहना है, या कुछ भी नहीं करना है। दैट्स चॉइस। क्या चॉइस करना चाहता है। लेकिन मैं बच्चों को ये भी बताता हूँ कि जब भी आप ऐसा चॉइस करते हैं, इन बिटवीन यू मस्ट रियलाइज कि दे आर डिफिकल्टीज, सेटबैक्स। आपने चॉइस किया कि मुझे एक बहुत बड़ा ऑफिसर बनना है, तो उसको मेहनत करना पड़ेगा। आपको माहौल बनाना पड़ेगा, आपको एक माहौल बनाना पड़ेगा। बच्चे के लिए हमें बनाए या बच्चे को एक माहौल बनाना पड़ेगा, तब उस चॉइस को वो कर पाएगा। कहने का मतलब यही है कि हम सब के बीच में एक चॉइस है, हमारे बच्चों का एक चॉइस है, उसमें हम हेल्प कर सकते हैं, उसमें हम उसको हेल्प कर सकते हैं। बच्चा कैसे अपना चॉइस को पा सकता है। मैं चूँकि बहुत सारे यहाँ पेरेंट्स हैं, बहुत सारे बड़े बच्चे भी होंगे, मैं और एक चीज़ करना चाह रहा हूँ। एक पाकिस्तान में एक मॉडल है, डिसेबल्ड मॉडल, मुनीबा मज़ारी। वो एक स्पीकर भी है, बहुत बार मोटिवेशनल स्पीकर है। वो कहती हैं कि बहुत बार हम डरे हुए होते हैं कि बहुत दिक्कत है, आएगा, ये आएगा, वो आएगा। She tells the problems are not big, we are too small to deal with them. Problems बहुत बड़े नहीं होते, हम इतने छोटे हो जाते हैं कि उसको डील ही नहीं करना चाहते। प्रॉब्लम्स आएंगे, वो कहती है कि प्रॉब्लम्स वो सबके साथ आते हैं, बट ये नियति नहीं है। प्रॉब्लम्स आर नॉट परमानेंट, वो जाते हैं। कोशिश करेंगे, सॉल्यूशन ढूंढेंगे तो जाते हैं। वो जाते हैं कैसे? आप खुद मेहनत करेंगे या तो लोगों के साथ में मिलकर करेंगे, या अभी हमको बच्चों ने एक बहुत बढ़िया कहानी बताई है, रिश्ते, द सागा ऑफ रिलेशनशिप। ये हमारा काम आता है। दिस रिलेशनशिप विल कम टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, आपके बच्चे के प्रॉब्लम्स ये सॉल्व करने का आता है। जिन घरों में अच्छे रिलेशंस होते हैं वहाँ शांति होती है, वहाँ प्रॉब्लम भी आते हैं तो सॉल्व करने के 10 आदमी आ जाते हैं। हम नहीं कर पाए तो मौसा आ गया, मौसी आ गया, नाना आ गया, नानी आ गया, कोई ना कोई आ जाता है ड्यू टू रिश्ते। तो वो हमको समझने का जरूरत है कि उस तरह से माहौल। वो कहती हैं कि समटाइम्स व्हाट हैपेंस, वी ऑलवेज ट्राई फॉर और ऑलवेज क्राई फॉर आवरसेल्व्स, माई थिंकिंग, माई फादर, माई टीचर, माई बुक, माई ओपिनियन, एवरीथिंग। हम लोग को ना बच्चों के लिए कुछ ऐसा कर देते हैं कि दे हैव देयर ओन फैंटेसीज, बहुत बड़े बड़े फैंटेसीज बच्चे बना लेते हैं ड्यू टू लैक ऑफ दिस टाइप ऑफ एनवायरनमेंट। ऐसे टाइप का एनवायरनमेंट नहीं मिलता है जिसके चलते बच्चे क्या करते हैं, अपने ढंग की फैंटेसीज है उनको। बहुत लोग को नहीं देखे हैं तो उनको लगता है कि हम जो सोचते हैं वही होना चाहिए, और ऐसा नहीं होता है, देन मैं तो बेकार का हूँ। वो ये भी कहती हैं कि बहुत बार ऐसा सोचने के बाद जब बच्चों को उनकी फैंटेसीज फुलफिल नहीं होती है तो सोचते हैं कि मैं इसके लिए क्यों हूँ, हम तो कुछ नहीं चाहिए, अब तो हमको लगता है कि कुछ नहीं होगा मेरा से। देन दे प्लान टू गिव अप। उनका कहना है कि गिव अप इज नॉट एन ऑप्शन, फेल्योर इज एन ऑप्शन बट गिव अप इज नॉट एन ऑप्शन। ये सब भी चीज़ें हमको बच्चों को बताना है। गिव अप इज नॉट एन ऑप्शन, फेलियर इज ऑप्शन। अब फेल होंगे, लेकिन फिर आगे जाएंगे। इसको हमको बच्चों को बताना होगा। वो कहती हैं कि डोंट डाई बिफोर द डेथ, वी ऑल डाई। मरने से पहले किसी को मरना नहीं चाहिए, हमको सबको मरना ही है। हमने कहा ना कि भगवद गीता कहता है कि जिसने बर्थ लिया है उसको तो मरना ही है। वी ऑल डाई, डोंट डाई बिफोर द डेथ। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। हमारे बहुत बड़े ऑफिसर, बच्चे बहुत अच्छा पढ़ाई किए, ऑलवेज टॉपर्स रहे। उसके बाद क्या हुआ कि उनको यूएस भेजा गया,
यूएस में one of the children she committed suicide. कहीं ना कहीं हमने ये माहौल नहीं दे पाए हम। मैं सोचता हूँ कि कहीं कहीं हम ये माहौल नहीं दे पाए। टुडे सोचने का जरूरत ये है कि आप सिर्फ परसेंटेज पे मत जाओ कि कितना बच्चा परसेंटेज ला रहा है, कितना बच्चा परसेंटेज ला रहा है, बट वी शुड गो फॉर द पर्सनालिटी। पर्सनालिटी क्या है कि बच्चे में नैतिक मूल्य कितने हैं, नैतिक में हमने कितना उसमें मॉरल वैल्यू डेवलप कर पाया, ताकि फॉर दैट सिचुएशंस वो कोप अप कर पाए। हमने वो सिखाया नहीं बच्चा को, वो कोप अप नहीं कर पाया, वो सिचुएशन नहीं कर पाया। हमने उसको सिर्फ बताया कि तुमको 90 से ऊपर % लाना है। लेकिन इन केस में अगर परिस्थितियां, व्हाट इज माहौल क्या है? माहौल इज सॉर्ट ऑफ फोर्स, सॉर्ट ऑफ परिस्थितियां हैं जिसको झेलने के लिए भी बच्चा को बता कर रखना है कि ऐसा होता है और ऐसे होगा तो ऐसा कर देना, कभी डर के नहीं रहना। इट हैपेंस, सबके साथ होता है, सबके साथ होता है। फेल्योर सबके साथ है, आज इसके साथ फिर उसके साथ उसके साथ। हमने कहा ना, कुछ लोग जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, कुछ सॉल्व नहीं कर पाते हैं, उनको दिक्कत होती है सॉल्व करने के लिए। तो हमारे संस्कार में ये भी होना चाहिए बच्चों को। तीसरा मैं चीज़ जो बताना जा रहा हूँ वो है कि हम लोग को, जैसे बच्चों ने हमें बताया, रिश्ते, मानवीय मूल्यों के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहिए। ये हमें बच्चों को सिखाना चाहिए। मानवीय मूल्यों के साथ कोई समझौता करना नहीं चाहते। हम लोग को ये सिखाना चाहिए कि आवर स्टूडेंट्स, बच्चे, दे शुड स्टिक टू द मॉरल वैल्यूज, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, सिंसेरिटी, सेंसिटिविटी टू पुअर, परोपकार, ईमानदारी, अच्छा सोच, अच्छा कार्य, लोगों के लिए दया, करुणा, ये सब अच्छे सोच है। आपके बच्चे की, हमारे बच्चे की कोई पहचान नहीं बनती है अगर वो केवल मार्क्स लाता है। उसकी पहचान पैसा से नहीं बनती, उसकी पहचान विद्वता से नहीं बनती, उसकी पहचान सुंदरता से भी नहीं बनती, उसकी पहचान बनती है मानवीय मूल्यों से। और हमें पूरे गार्जियंस को, हमको कोशिश करना चाहिए कि बच्चों में एक मानवीय मूल्य हो। ये मानवीय मूल्य वो कभी नहीं चेंज होते। मैं बताऊं कि मानवीय मूल्य ये हमारे जीवन के एसेंस है। दिस मॉरल वैल्यूज आर द एसेंस ऑफ आवर लाइफ, एसेंस ऑफ आवर लाइवलीनेस। इन्हें हमें जरूर करना चाहिए। हमारे कैरेक्टर चेंजेस होते हैं, हमारे पर्सनालिटी चेंजेस होते हैं, बट मॉरल वैल्यू नेवर चेंज, नेवर चेंज। हमको लगता है कि हम सबों को इस पर जरूर सोचना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम सब लोग यहाँ पे गार्जियन हैं और हमारी ओर से आप सबों को शुभकामनाएं हैं कि हम लोग सब पुनः, मैं 3 चीज़ें मैंने आपको बताया है। पहला चीज़ बताया है कि हमें एक सकारात्मक और सशक्त माहौल बच्चों को देने का ज़रूरत है। सकारात्मक और सशक्त माहौल देने का ज़रूरत है। बच्चों को मेहनत करने की आदत हमें डालना है, वो जाके स्कूल भी उसको कर पाएगा। तीसरा हमने कहा कि नैतिक मूल्यों के साथ हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूँ। जब मैं यूपीएससी का इंटरव्यू देने गया तो मैं दिल्ली में था। दिल्ली में बहुत सारे, चूँकि बीइंग ए टेक्निकल स्टूडेंट हमारे बहुत सारे दोस्त थे, दे आर ऑल्सो फ्रॉम IITs। तो एक IIT खड़गपुर से लड़का था, मैं था, ही वॉज फ्रॉम बिहार। तो जब रिटर्न हुआ था, मैंने भी रिटर्न में बहुत अच्छा मार्क्स लाया था, बट इंटरव्यू मुझे कम आया। वो हम जब दोनों इंटरव्यू के लिए गए तो इंटरव्यू में वो मुझसे बहुत अच्छा मार्क्स लाया था, आई नो, रिटर्न में जैसा उसका, बट इंटरव्यू में उसका बहुत खराब मार्क्स आया, 10% वाले, वो फेल हो गया। कहीं ना कहीं मुझको लगा कि ये जो माहौल था, ये माहौल उसको नहीं मिल पाया। व्हाट हैपेंड, यू नो, वो बोर्ड से लड़ाई कर लिया, बोर्ड में ही अपना दिखाने के लिए बोर्ड से अपना लड़ाई कर लिया। दिस हैपेंस व्हेन आप माहौल नहीं दे पाते। मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी यहाँ शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, फादर हैं, सिस्टर हैं, आपका भी एक बहुत बड़ा रोल है, आपका भी एक बहुत बड़ा रोल है। आपको भी जरूर जानना चाहिए कि बच्चों के विकास के लिए माहौल का बहुत ज़रूरत होता है। यू नो, जो टीचर्स होते हैं
उनको बोलते हैं हम लोग गाइड, बहुत लोग बोलते हैं फिलोसफर्स। बेसिकली टीचर्स आर लाइक ट्रीज, पेड़ की तरह होते हैं। वो बच्चे को फल देते हैं, बच्चे उसी फल को खाते हैं और हष्ट पुष्ट हो जाते हैं, आगे जाते हैं। बट नेवर आस्क इन रिटर्न, टीचर नेवर आस्क इन रिटर्न कि हमको क्या मिलेगा। लेकिन कभी भी किसी मोड़ पे टीचर मिल जाते हैं तो उनको खुशी होती है कि देखो ये मेरा, कभी हमने उनको कुछ नहीं दिया लेकिन उनको जरूर ये होती है कि देखो ये मेरा बच्चा था, मेरा स्टूडेंट था। दे फील प्राउड कि ये मेरा बच्चा था। तो वो टीचर की रोल है। आज के समय में मैं यही रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ आपको कि छोटे छोटे माहौल जो आपके, वो बच्चे को कहीं से कहीं ले जाएंगे। आई टेल यू एक और एग्जांपल मैं बता रहा हूँ अपने स्कूल का। जब आई वॉज इन क्लास 3, दैट वाज हिंदी मीडियम, तो उसमें हमारे टीचर होते थे कामिल डुंगडुंग। तो मैं एक बार स्कूल जा नहीं रहा था, बीमार हो गया था, सो स्कूल जा नहीं रहा था 2-3 दिन से। तो एक दिन अर्ली मॉर्निंग मुझको झाड़ फूक हो रही थी, यू नो, जो यहाँ गांव देहात में बीमार हो जाते हैं तो लाते हैं लोग, झाड़ फूक कराते हैं। तो मदर मेरी बोली कि झाड़ फूक वाला आया है तो मुझको झाड़ लो, तुरंत बीमार ठीक हो जाएगा। वही झाड़ फूक हो रहा था, मेरा टीचर पहुँच गया साइकिल से। अब वो स्थिति मेरी है कि काटो तो खून नहीं। अब समझ रहे हो उस समय, और हमारे घर में बैठने की पीढ़ा तक नहीं थी। पीढ़ा आप समझते हो ना, जो स्टूल वगैरह होते हैं, नहीं थे। अब टीचर को बैठाऊं तो कहाँ बैठाऊं, मेरा दिमाग एकदम बिल्कुल, ये क्या करूं। माता पिता को तो पता नहीं लगा। तो वो आके बोले कि क्यों नहीं जा रहे हो स्कूल। तो मैं कुछ नहीं बोला। माँ बोलती देखिए ना ऐसे ऐसे बीमार हो गया था बच्चा ये, तो आप उनको कहा कि क्यों करा रहे हो झाड़ फूक, दवाई का ही नहीं करा रहे हो, यहाँ तो हॉस्पिटल है दूर में आपका। तो दैट डे आई वेंट टू हॉस्पिटल और 2-3 दिन ठीक हो गया, फिर मैं स्कूल गया। ये एक टीचर का रोल, कभी कभी मैं सोचता हूँ उस दिन हो सकता है टीचर नहीं आते तो मैं हो सकता है स्टेज में आपको ये बात नहीं करता होता, छोड़ देता स्कूल में भी। तो उस समय टीचर ऐसे भी सोचते थे। सो व्हाट आई रिक्वेस्ट यू कि कोई भी बच्चा को ड्रॉप आउट मत होने दीजिए। बट आई टेल यू, यहाँ पे झारखंड में ड्रॉप आउट रेट बहुत हाई है। जो एग्जैक्ट जो डेटा है दैट्स नॉट विथ मी, बट मैं कुछ दिन पहले मिनिस्ट्री से देख रहा था, ऑलमोस्ट पर्टिकुलर इन रूरल एरियाज ना, ऑलमोस्ट सेकेंडरी हायर सेकेंडरी तक वो 15 to 18%, मीन्स एक क्लास में 100 बच्चे जा रहे हैं तो 15 से 17-18 बच्चे ड्रॉप आउट हो जा रहे हैं। तो वो आप करिए कि कम से कम बच्चे कभी आपके ड्रॉप आउट ना हो जाए। ये बच्चे ही आपके सब कुछ हैं, बच्चे आपके सब कुछ हैं। हमने कहा ना किसी दिन आप मिलेंगे तो आप बहुत बाग हो जाएंगे कि देखो मेरा यही था स्टूडेंट जिसने ये कर दिया। इवन आपको खुशी होती होगी जब आपको पता चलता होगा कि आपके बच्चे जो है इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, ऐसे हो गए। तो सब आपके लिए भी बहुत ये है। मेरा एक रिक्वेस्ट ये भी है कि हमारे जो टीचर थे वो हम लोग को 45 मिनट्स की हमारी क्लासेस होती थी। 45 मिनट्स की क्लासेस में वो 30 मिनट्स पढ़ाते थे, ओनली 30 मिनट्स, 30। 15 मिनट्स वो हमें दे यूज्ड टू गिव अस सम प्रॉब्लम्स, चाहे वो मैथ्स का हो चाहे इंग्लिश का हो। 30 मिनट पढ़ा लिए और 15 मिनट के लिए असाइनमेंट देते थे। सबको बोलते क्लोज करो, क्लोज 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 क्लोज। देन बोर्ड में वो 2 क्वेश्चन डाल देते थे, बोलेगा जो सबसे पहले करेगा कट से हाथ उठाओ भाई। सी जो बच्चा का आप पढ़ा रहे थे उस समय हो सकता है कंसंट्रेशन लेवल ओनली 50% रहा हो, ओनली 50%। जब वो लेकिन बनाने लगेगा क्वेश्चन तो 90-95% कंसंट्रेशन से काम करेगा। तो जब भी आप बच्चे को, चूंकि आपने पूरी जो बॉल है उसे कोर्ट में फेंक दिया, अब तुम समझो बनाओ, मैं तो किसी को नहीं देखने जा रहा हूँ। वो हम लोग को बोलते थे और हम लोग बहुत जल्दी कुछ लोग थे जल्दी करके दिखाते, सर मैंने कर लिया सर। बट सी वो एक माहौल बनाया सर ने एक माहौल बनाया और सर ने कहा कि जो गलती करते हो उसका सबको लिस्ट कर रहा हूँ मैं, कौन कौन गलती कर रहे हो भाई उसको देखो, एक एग्जाम में मैं देखूंगा। तो उसने एक अलग टाइप्स के माहौल बनाया। उस माहौल में जाके हम लोग क्या करते थे कि जिस दिन सर का होता था ना उस दिन वेल प्रिपेयर्ड जाते थे। आज तो करते थे, आज भाई पहला दूसरा जो भी सर दे लिया ना
all methods which are there. So I'm getting just few examples कि कैसे आप एक माहौल डेवलप करके बच्चों में क्यूरियोसिटी डेवलप कर सकते हैं, उनको आगे ले जाने के लिए बना सकते हैं। मैंने शुरू में कहा ना, बच्चे एक विशुद्ध साहित्य होते हैं। कोई बच्चा बड़ा छोटा गलत बुरा ये कुछ नहीं होता, सब आप पे डिपेंड करता है, हम पे डिपेंड करता है, हम बच्चे को कैसे परवरिश देते हैं, कैसे हम बच्चे को आगे ले जाते हैं। एट द एंड आई express my sincere gratitude to Sister Jyotsna, Vice President, Vice Principal, all the teachers and staff here for having me. I'm really happy. It's not like a customary saying that I'm happy, I'm happy, I'm happy. I'm really happy to be here. I'm happy because of some sort of emotional attachment as my son is studying here. I'm also happy and privileged to be here, to be a chief guest in this wonderful school and this prestigious school of this district. I'm also happy, and I think this is my privilege to talk to all the proud parents and teachers. Once again, thank you very much, and wish you all the best for all of you. All the best. Thank you, sir.